بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ روح افزا اور ہمدرد کمپنی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا لگاتار کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ نریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ جو کمپنی ہے پاکستان کی کمپنی ہے، روح افزا کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے، اور اس سے جو پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کا استعمال انڈیا کے خلاف کیا جاتا ہے، ہندوؤں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ روح افزا کمپنی میں یا ہمدرد کی کمپنی میں جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے تو وہاں صرف مسلمانوں کو جاب دی جاتی ہے، ہندوؤں کو وہاں انٹری کی پرمیشن نہیں ہے، کوئی بھی کام ہندوؤں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پر آ کر یہ لکھ رہا ہے کہ روح افزا میں پورا کا پورا شوگر ہوتا ہے، اس کو پینے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آ کر کے کوئی یہ بھی لکھ رہا ہے کہ روح افزا میں تھوک ملایا جاتا ہے، اور جو پورا طریقہ ہے ہندوتوا گروپس کا، رائٹ ونگ کا، کہ مسلمانوں کی کمپنی کے خلاف، مسلمانوں کی بزنس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ پھیلانا، اور واٹس ایپ یونیورسٹی پر ان کو جو کچھ فارورڈ کیا جاتا ہے وہی دنیا کو بتانا۔ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، پوری تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے اور ان کو بتائیے کہ روح افزا اور ہمدرد کمپنی کی سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور کیسے یہ کمپنی ایک جگہ سے 3 جگہ تقسیم ہوئی، اور انڈیا میں کون سی ہمدرد کمپنی ہے، پاکستان میں کون سی کمپنی ہے، بنگلہ دیش میں کون سی کمپنی ہے، اور کہاں کیا اس کمپنی کے ذریعے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اسکرین پر آپ اس ٹویٹ کو دیکھیں، کسی نے ایکس پر لکھا اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ روح افزا از اے پاکستان بیسڈ کمپنی اونر از اے ریڈیکل ملا، strong possibility is profits goes for anti-Hindu and anti-national activities as a halal products highly possible it contains speed. These are the reasons anti-India gangs defending Ruh Afza drink. تو اس نے لکھا کہ روح افزا پاکستانی کمپنی ہے، کمپنی کا آنر ایک ریڈیکل ملا ہے، امکانات اور چانسز زیادہ یہی ہے کہ اس کا جو ریونیو آتا ہے، جو پروفٹ آتا ہے، اس کا استعمال ہندو کے خلاف کیا جاتا ہو اور دیش کے ہت کے خلاف کیا جاتا ہو۔ اس کے علاوہ حلال پروڈکٹ ہے تو اس میں تھوک بھی ملایا جاتا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جو اینٹی انڈیا لوگ ہیں وہ روح افزا کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایک اور کسی نے اسی طرح کا ٹویٹ کیا کہ the bottle is in the picture was bought in the USA and ہمدرد روح افزا is manufactured in Pakistan as well، کہ ہمدرد کو پاکستان میں بنایا جاتا ہے۔ ایک اور کسی نے اس طرح لکھا کہ apart from ہمدرد برانڈ روح افزا is a وقف and پاکستان برانڈ روح افزا is a just sugar syrup 90%۔ اسی طرح کا جو ٹویٹ لگاتار لوگ کرتے جا رہے ہیں کہ پاکستانی برانڈ ہے، یا یہ جو سیرپ ہے اس میں 90% شوگر ہوتا ہے، کوئی لکھ رہا ہے اس میں تھوک ملا جاتا ہے۔ اب سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ انڈیا کی کمپنی ہے یا پاکستان کی کمپنی ہے، اس کو جان لیجئے۔ ہمدرد کمپنی کا قیام 1906 میں عمل میں آیا تھا، آزادی سے پہلے کمپنی قائم ہوئی تھی۔ اس کمپنی کے فاؤنڈر اور بانی ہیں حافظ مرحوم حکیم عبد المجید، بڑے حکیم تھے عبد المجید صاحب، ان کا مقام و مرتبہ تھا، اور یونانی میڈیشن میں ان کو خاصا اثر و رسوخ حاصل تھا، چنانچہ انہوں نے ہمدرد نام کی دلی میں ایک کمپنی قائم کی۔ ہمدرد ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے درد برداشت کرنے والا، یا جو آپ کے درد میں شریک ہو، تو یہ ہمدرد کا پورا مطلب ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ یہ کمپنی ترقی کرتے رہی، اس کمپنی کے ذریعے انہوں نے روح افزا شربت بنایا، کچھ دوسری دوائی انہوں نے بنائی، اور ہمدرد کمپنی دیش بھر میں مقبول ہونے لگی۔ اس کے بعد 1947 میں انڈیا کا بٹوارہ ہو گیا، ایک ملک پاکستان بنا، انڈیا باقی رہا۔ چنانچہ حکیم عبد المجید کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے نے انڈیا رہنے کا فیصلہ کیا اور دوسرے بیٹے نے پاکستان ہجرت کی۔ انڈیا میں جس بیٹے نے رہنے کا فیصلہ کیا ان کا نام ہے حکیم عبد الحمید، اور جس بیٹے نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ان کا نام ہے حکیم محمد سعید۔ حکیم محمد سعید پاکستان چلے گئے، اور پاکستان جانے کے بعد وہاں انہوں نے 1948 میں ایک نئی ہمدرد کمپنی قائم کی۔ ان کو پتا تھا کہ جو ہمدرد کی میڈیسن ہے کیسے تیار کی جاتی ہے، کیسے دوا بنائی جاتی ہے، تو جو کچھ پروڈکٹس انڈیا میں بن رہے تھے ان تمام پروڈکٹس کو حکیم محمد سعید نے پاکستان میں بھی بنانا شروع کیا۔ روح افزا بھی پاکستان میں بننے لگا، دوسری دوائیں بھی بننے لگی۔ ادھر انڈیا میں جو کمپنی 1906 سے چل رہی تھی وہ کمپنی چلتی رہی، اور اس کمپنی کے مالک یہاں ذمہ دار تھے حکیم عبد الحمید۔ اس کے بعد اس ہمدرد کمپنی کو ایک طرح سے وقف کر دیا گیا، چیریٹیبل ٹرسٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کا جو بھی انکم آئے گا، اس کا جو پیسہ ہے وہ رفاہی کاموں میں، فلاحی کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ حکیم عبد الحمید صاحب نے انڈیا میں بہت سارے رفاہی کاموں کو کرنا شروع کر دیا۔ 1989 میں انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی قائم کی جو بہت مشہور
मशहूर यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में है। इसके अलावा कई सारे हमदर्द के स्कूल कायम किए गए, मेडिकल कॉलेज उन्होंने कायम करने का फैसला किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द कंपनी को वफ़ कंपनी में तब्दील कर दिया और उन्होंने भी फैसला किया कि उसका जो पैसा है वो रफ़ाही कामों में खर्च किया जाएगा। उन्होंने भी वहाँ यानी कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी कायम की, हमदर्द कॉलेज कायम किया, हमदर्द के स्कूल कायम किए। पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने 1953 में बांग्लादेश में भी हमदर्द की एक ब्रांच को कायम किया और बांग्लादेश में भी हमदर्द कंपनी बहुत मकबूल हो गई। उस वक्त बांग्लादेश बना नहीं था, जब बल्कि जो बांग्लादेश है उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। चुनांचे 1971 में जब बांग्लादेश भी आज़ाद हो गया, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और हमदर्द की जो कंपनी मौजूद थी बांग्लादेश में 1972 में उसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया और उसका नाम रखा गया हमदर्द बांग्लादेश और उसको भी वफ़ कर दिया गया। वहाँ के लोगों ने आज़ादाना तौर पर बांग्लादेश की हमदर्द कंपनी को चलाना शुरू कर दिया और वहाँ भी हमदर्द को वफ़ कर दिया गया कि इस कंपनी का जो भी पैसा आएगा वो रफ़ाही कामों में, सोशल कामों में उसको खर्च किया जाएगा। बांग्लादेश में भी हमदर्द यूनिवर्सिटी मौजूद है, हमदर्द कॉलेजेस मौजूद है, स्कूल मौजूद है। अगर आप डिटेल्स में जाएंगे कि इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मैं बता भी रहा हूँ आपको कि 1906 में हमदर्द कंपनी दिल्ली में कायम हुई हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब के ज़रिए, और उन्होंने उनके बेटे यानी हकीम अब्दुल हमीद ने 1948 में इसको चैरिटेबल ट्रस्ट में तब्दील कर दिया। इस कंपनी को यानी नॉन प्रॉफिट होगा। इसका जो भी प्रॉफिट है, जो भी रेवेन्यू है, जो भी इनकम है, वो चैरिटी के कामों में खर्च किया जाएगा। एजुकेशन का काम हो, रिसर्च का काम हो, हेल्थ केयर जो हेल्थ का काम है उसमें खर्च किया जाएगा। कंपनी के जो की प्रोडक्ट्स है इंडिया में, उसमें रूह अफ़ज़ा है जो हर्बल सिरप है और दुनिया भर में मकबूल है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस ड्रिंक को पसंद किया जाता है उसमें रूह अफ़ज़ा पहले नंबर पर है। उसके अलावा साफ़ी भी हमदर्द का बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो खून की सफाई का काम करता है। जिसको खुजली हो जाती है तो साफ़ी ही उसके लिए सबसे अच्छी दवा है। उसके अलावा जो शीना जो है हमदर्द का काफ़ी पॉपुलर है, जो कफ़ में या सर्दी में काम आता है। इसी तरह रोगन बादाम जो शरीन है, ये भी हमदर्द का काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा चिंकारा बहुत पॉपुलर है। हाल ही में हमदर्द इंडिया ने बहुत सारे मज़ीद प्रोडक्ट्स को रिलीज़ किया है, जैसे लस्सी है या नारियल का पानी है। हमदर्द के जो इंस्टीट्यूशन इंडिया में क्या है वो जान लीजिए। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है और बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, जो 1989 में हमदर्द के ज़रिए कायम की गई। उसके बाद हमदर्द का हॉस्पिटल है। उसके अलावा हमदर्द के कुछ स्कूल है, तो इंडिया है। 1948 में पाकिस्तान में हमदर्द कायम हुआ और हमदर्द को वहाँ कायम किया हकीम मोहम्मद सईद ने, जो दूसरे बेटे थे और उन्होंने पाकिस्तान हिजरत की थी। पाकिस्तान में हमदर्द का जो हेडक्वार्टर है वो कराची में है। ज़्यादातर इंडिया के जो लोग जो हिजरत करके गए थे कराची में ही उन्होंने रहने का फैसला किया। कराची इंडिया के मुंबई जैसा शहर भी माना जाता है। 1953 में हकीम मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान हमदर्द को वफ़ कर दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया। अब वहाँ जो स्कॉलर्स है, जो एक्सपर्ट है, वो इसको चलाते हैं। हकीम मोहम्मद सईद को पाकिस्तान में 1998 में कत्ल कर दिया गया, एक तरह से वहाँ वो शहीद हो गए। हमदर्द जो पाकिस्तान में है उसका की प्रोडक्ट्स क्या है उसको भी जान लीजिए। रूह अफ़ज़ा वहाँ बनता है, उसके अलावा शरबत बनता है, कुछ और चीज़ें बनती है। जो इंस्टीट्यूशन है हमदर्द के पाकिस्तान में, उसमें हमदर्द यूनिवर्सिटी पाकिस्तान कराची, मेदांता अल हिकमा यानी एजुकेशन सिटी है, उसके अलावा कुछ स्कूल और कॉलेजेस है। बांग्लादेश में हमदर्द का क्या क्या है वो जान लीजिए। बांग्लादेश पहले जब ईस्ट पाकिस्तान था तो 1953 में वहाँ हमदर्द पाकिस्तान की ब्रांच कायम हुई थी। ढाका में इसकी ऑफिस है। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो 1972 में दोबारा से वहाँ कायम किया गया। जो ऑनरशिप है बांग्लादेश में हमदर्द की, वो स्कॉलर्स के हाथों में है, हुक्मा के हाथों में है। हकीम अब्दुल मजीद साहब के ख़ानदान के लोगों का उससे कुछ ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ का जो की प्रोडक्ट्स है वो रूह अफ़ज़ा है, उसके अलावा ख़मीरा है, शरबत है और कुछ और चीज़ें हैं। जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी बांग्लादेश गज़ारिया मुशनीगंज में है। उसके अलावा हमदर्द पब्लिक कॉलेज यानी स्कूल ढाका है, हमदर्द हॉस्पिटल है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमदर्द हॉस्पिटल बांग्लादेश में पाया जाता है। बांग्लादेश में भी जो वक्फ़ है वो वक्फ़ डिक्लेयर है वफ़ के लिए कि उसका जो भी पैसा आएगा, जो भी उससे इनकम आएगी, उसको रफ़ाही कामों में ख़र्च किया जाएगा। तो ये तीनों मुल्कों की तफसील मैंने आपको बता दी। इंडिया में हकीम अब्दुल हमीद साहब रहे थे, उनका 1999 में इंतकाल हो गया। हकीम अब्दुल हमीद साहब के दो बेटे थे, उनके एक बेटे का नाम है
हैं मोहम्मद हामिद अहमद और दूसरे बेटे मजीद। तो अब ये दोनों बेटे हमदर्द को अपने तौर पर चला रहे हैं और हमदर्द वक्फ है चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर, और उसका जो भी इनकम आता है सोशल वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमदर्द पूरी तरह इंडिया की कंपनी है, पाकिस्तान की नहीं है। अब कुछ लोगों ने यह भी सोशल मीडिया पर निगेटिव प्रोपेगेंडा किया कि हमदर्द में हिंदुओं को मुलाजमत नहीं दी जाती, हिंदू वहाँ काम नहीं करते हैं। और इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए, हकीकत से आवाम को वाकिफ कराने के लिए मशहूर सहाफ़ी अजीत अंजुम हमदर्द की कंपनी में पहुँच गए जो मानेसर हरियाणा में है, और कंपनी से जा करके उन्होंने दिखाया कि कौन लोग हमदर्द में काम करते हैं। और जब वहाँ वो पहुँचते हैं, जिन लोगों से उनकी मुलाकात होती है, तो हमदर्द में जो टॉप पोस्ट पर है, बड़े ओहदों पर हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि ज़्यादातर नन मुस्लिम हैं। हमदर्द में काम करने वाले हैं वो भी नन मुस्लिम हैं। अब देखिए अजीत अंजुम की रिपोर्ट का कुछ पार्ट कि वहाँ कौन लोग काम करते हैं। ट्विटर पर बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि रूह अफ़ज़ा जो कंपनी बनाती है हमदर्द, वहाँ हिंदुओं के लिए नो एंट्री है, सारे मुलाजिम सारे एम्प्लॉई सिर्फ मुस्लिम हैं। तो यहाँ आते ही मुझे जब प्लांट में मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो बातचीत के क्रम में पता चला कि यहाँ जो कंपनी में, इस हमदर्द फूड्स के मुख्यालय में, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो टॉप पोजीशन पर कुछ लोग हैं, उनमें कौन लोग हैं? 3 लोग मेरे आसपास हैं, तो ज़रा इनसे परिचय कराते। पहले तो आपका शुभ नाम, परिचय आप खुद बताइए। मेरा नाम मंसूर है, मंसूर अली। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ हमदर्द फूड्स के लिए। मेरा नाम शैलेश तिवारी है। मैं यहाँ पे एज ए चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन काम कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से। शैलेश तिवारी हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन प्लांट काम कर रहे हैं 11 साल से। नाम पर गौर कीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है और मैं यहाँ 4 साल से क्वालिटी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। संजीव त्रिपाठी हैं, 4 साल से यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रेहान है और मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ एज ए ब्रांड मैनेजर। आपका शुभ नाम? नज़दीक आइए थोड़ा। मेरा नाम सचिन है और मैं यहाँ पर रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट देखता हूँ। पूरा नाम? सचिन पुंडीर। सचिन पुंडीर, ये मैनेजर हैं रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट में। तो सचिन हैं, शैलेश तिवारी हैं, संजीव त्रिपाठी है, सबका आई कार्ड भी चेक कर ले रहा हूँ। तो आपने देखा कि रूह अफ़ज़ा में काम करने वाले या वहाँ अहम पोजीशन पर रहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि नन मुस्लिम्स भी है, दूसरे लोग भी हैं, और सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उनको वहाँ सब कुछ करने की इजाज़त है, परमिशन है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। और हमदर्द इंडिया की पुरानी कंपनियों में से एक है। हमदर्द का जो रेवेन्यू है वो 500 से 1000 करोड़ के बीच का है सालाना जो टर्नओवर है, जबकि जो बाबा रामदेव की कंपनी है वो कंपनी बहुत ज़्यादा टर्नओवर करती है। हालांकि बाबा रामदेव को अपना शरबत मार्केट में लॉन्च करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा, शरबत जिहाद का नारा देना पड़ा, और बाबा रामदेव का ये जो तरीक़ा था वो उल्टा साबित हो गया। बाबा रामदेव का ज़बरदस्त नुकसान हो गया। अब खबर यह है कि पिछले 1 हफ्ता में रूह अफ़ज़ा की जो सेल है कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। उमूमन रूह अफ़ज़ा की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त रमज़ानुल मुबारक के महीने में होती है। अब खबर यह है कि उससे कई गुना ज़्यादा हुई है क्योंकि बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा के ख़िलाफ़ निगेटिव प्रोपेगेंडा करना चाहा। एक खबर यह भी आई है कि बाबा रामदेव के ऊपर कई सारे केसेस है। बाबा रामदेव वही है जिनको रामलीला मैदान से एक मरतबा साड़ी पहनकर भागना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। रामदेव के खिलाफ कई सारे केसेस है और रामदेव के हर प्रोडक्ट्स पर सवाल उठता है। रामदेव ने अपने प्रोडक्ट्स को मुसलमानों के बीच में या अरब ममालिक के बीच में बेचने के लिए जमियत उलमा हिंद से हलाल सर्टिफिकेट भी ले रखी है। मौलाना अरशद मदनी की तंजीम ने इनको सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। तब मौलाना महमूद मदनी की जमियत ने सर्टिफिकेट इनको दिया और उस पर भी सवाल उठ रहा है कि क्यों उन्होंने इसको सर्टिफिकेट दिया। बहरहाल ये पूरी सच्चाई है रूह अफ़ज़ा की, ये पूरी सच्चाई है हमदर्द कंपनी की, जिसको मैंने आपसे शेयर किया। रूह अफ़ज़ा के सिलसिले में एक डिटेल वीडियो पहले भी मैंने बताया था जिसमें कहा था कि रूह अफ़ज़ा कैसे बनाता है, रूह अफ़ज़ा की क्वालिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और किस तरह रूह अफ़ज़ा ने बाबा रामदेव को, पतंजलि को मुँह तोड़ जवाब दिया है। और दुनिया भर में रूह अफ़ज़ा की जो मकबूलियत है अब और बढ़ने लगी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।